हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 14 एंड द चैप्टर नेम इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। There are two ways of reporting what people have said. Okay, तो दो तरीके हैं जिससे हम रिपोर्ट कर सकते हैं कि क्या एक पर्सन ने बोला है. Okay, first one, point number one is when we quote the actual words of a speaker, it is called direct speech. We use inverted commas when we report the exact words of the speaker. जब हम कुछ actual words बोलते हैं किसी speaker का तो उसे हम direct speech बोलते हैं और इसमें हम inverted comma का use करते हैं जब हम report कर रहे हो exact word किसका speaker का. Okay, आपको example दे रखा है when all the other are asleep, let's go out looking for foxes, said Phillips. Okay, तो ये तो आपका direct speech हो गया. This is called the direct speech. Okay. Now next is point number 2. When we report that what a speaker said without quoting his exact word, it is called indirect speech. We do not use inverted commas when the exact words are not being repeated. Okay, तो जब हम report कर रहे हो एक speaker की बात जो कि बिना उसे quote किए, okay, उसके exact word को हम use नहीं कर रहे हैं, बिना उसे quote किए हम उसे report कर रहे हो तो उसे हम indirect speech बोलेंगे. तो indirect way में हम बोल रहे हैं उसे and इसमें हम inverted comma का use नहीं करेंगे क्योंकि हम exact word use नहीं कर रहे इधर. Okay, for example, Phillips suggested when all the others were asleep, they should go out looking for foxes. Okay, तो इसको हम क्या बोलते हैं? This is called indirect speech. Now we can use both ways of reporting to make writing task interesting. तो हम दोनों तरीका use कर सकते हैं ताकि writing task और interesting बने. Okay, so let's see. The first topic is rules to remember. तो इसमें कुछ rules है जो हमें remember करने हैं. Point number 1. Reporting verbs. A reporting verb adds to the meaning of the sentence. It shows the expression, mood and feelings of the speaker. तो reporting verb जो होता है वो meaning add करता है sentence का और वो expression बताता है, mood बताता है, feeling बताता है speaker का. Okay, if the reporting verb is in the present or future tense, the tense of the verb in the reported speech is not changed. अगर reporting verb जो है present या future tense में है तो उसका tense बिल्कुल भी change नहीं होगा. If the reporting verb is in the past tense, the following changes are to be made while reporting the speech. अगर reporting वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है तो ऐसे कुछ फॉलोइंग वर्ड्स होंगे जो जिसमें हमें उसके चेंजेस कुछ करने होंगे, वो भी पास्ट फॉर्म में ही करने होंगे. जैसे कि आपको दे रखा है यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, सिंपल प्रेजेंट जो है वो चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में. ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा. सिंपल पास्ट आपका पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा. ओके, आप यहाँ पर वर्ड्स भी देख सकते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का. ओके, एम इज आर का आप देखते हो प्रेजेंट में और इनडायरेक्ट में आप वर्स वर का यूज करते हो. नेक्स्ट वन, वर्स वर आप डायरेक्ट में देख रहे हो और इनडायरेक्ट में आप उसकी जगह परफेक्ट फॉर्म यूज करोगे, दैट इज हैड बीन. ओके, हैज हैव डायरेक्ट, हैड इनडायरेक्ट, विल शैल डायरेक्ट वन, would, should indirect, may direct, might indirect, can direct, could indirect. ऐसे ही टुडे का क्या हो जाएगा? डैट डे हो जाएगा इनडायरेक्ट में, yesterday the previous day, tomorrow the next day, this that, these those, now then, ago, before. Okay, now point number 2 in this is the first and the second person pronoun in the direct speech changes into third person pronoun in the indirect speech. जो first और second person होता है pronoun जो कि direct speech में है वो change हो जाएगा third person में, वो भी indirect speech में. Okay, जैसे कि for example Babita said to Priyanka, I like you a lot. ओके, तो यहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमा में देख सकते हो. नेक्स्ट वन, बबीता सेड टू प्रियंका दैट शी लाइक्ड हर अ लॉट. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन कैसे थर्ड पर्सन में चेंज हो गया इनडायरेक्ट में. ओके, now next is point number 3. If the one who reports is the same as the one addressed, we change the second person to first. अगर जिसने रिपोर्ट किया है वो वही सेम पर्सन है जिसने वो एड्रेस किया है तो हम सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देंगे, मतलब उल्टा हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, माई फादर सेड टू मी यू आर अ क्लेवर बॉय. ओके, तो आप देख सकते हो यू जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन फर्स्ट में चेंज हो गया. इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा? माई फादर सेड टू मी दैट आई वाज अ क्लेवर बॉय, तो यू आई में चेंज हो गया यहाँ पर. ओके, now next is point number 4. If the indirect speech statement are usually introduced by that. Okay, अगर indirect speech in the indirect speech में indirect speech में जो statement है वो usually introduce होता है by that से. Okay, जैसे कि for example अभय said to me I am your brother's classmate. Okay, तो indirect में क्या हो जाएगा? अभय said to me that, inverted comma हट जाएगा, comma हट जाएगा, उसकी जगह that आ जाएगा, he was my brother's classmate. Okay,
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट टॉपिक इज क्वेश्चंस आर ऑफ टू काइंड्स। क्वेश्चंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पॉइंट नंबर 1 आपको दे रखा है, दोज विच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय क्वेश्चन वर्ड्स लाइक हु, विच, व्हेन, हाउ, एक्सेट्रा। ओके, वो वर्ड्स जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे हु, विच, व्हेन हो गया। Okay, now next one is point number 2, those which are introduced by auxiliary like is, am, are, was, were, do, did, can, will, has, etc. Okay, जो auxiliary से start होते हैं वैसे form के question भी होते हैं। While converting an interrogative statement, while converting an interrogative sentence into indirect form, the following changes are made। कुछ ऐसे following changes करने होते हैं, जैसे point number 1 आपको दिया है, change the reporting verb say or tell into ask or inquire। हमें change करना है reporting verb say और tell को किसमें, ask और inquire में। Okay, now next is point number 2, use if or whether instead of that to introduce the reported speech if it does not begin with a question word। हम if का use कर सकते हैं या whether का use कर सकते हैं instead of that to introduce okay the reported speech। और अगर वो नहीं होगा उससे शुरुआत विद, अगर वो क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत नहीं होगा तो हम if का यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3, नो कंजंक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ क्वेश्चन वर्ड। तब हमें कंजंक्शन की जरूरत नहीं होती जब क्वेश्चन को हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। Now next is point number 4, the interrogative form is changed into a statement। interrogative form जो है वो statement में change हो जाता है। Okay, अब आप यहाँ पर example देख सकते हो, she said to me where are you going, तो ये direct हो गया। Okay, she asked me, said किस में change हो गया, asked में change हो गया। she asked me where I was going, ये indirect हो गया। next one, he said may I go, डायरेक्ट हो गया ये आपका। he asked, यहाँ पूछा गया है ना, तो he asked if he might go, तो आप देख सकते हो if यूज हुआ है, what या वर्स का, what या when का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, now next topic is imperative sentence। while converting an imperative sentence into indirect form the following changes are made। जब हम imperative sentence को change करेंगे तो कुछ ऐसे rules आपको दे रखे हैं, जैसे point number 1 आपको दिया है, the reporting verb said or told is changed into the verb indicating command, request, advice, etc. is required by the sentence। okay, तो reporting verb said और told जो है वो किसमें change हो जाएगा, जैसे जैसे requirement होगा sentence का उसमें change होगा, जैसे कि अगर command होगा या request होगा या फिर advice होगी। okay, now next is point number 2, change the imperative mood to infinite mood by placing to before the verb। हम चेंज करेंगे imperative mood को infinite mood में, जब हम उसमें to यूज करेंगे, to का यूज करेंगे सेंटेंस में। now next is point number 3, in case of imperative sentence beginning with let, use the reporting verb proposed or suggested followed by that and should। okay, imperative sentence में हम किसका यूज करते हैं, let का यूज करते हैं, पर उसके जगह हम reporting verb में क्या यूज करेंगे, propose का यूज करेंगे, suggested का यूज करेंगे, जिससे और वो किससे फॉलो कर रहा है, यानी कि वो डैट को फॉलो कर रहा है या शुड को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 4, फॉलो द रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउन। जैसे हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन का रूल्स देखा वैसे ही हमें उसे फॉलो करना है। नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5, नो कंजंक्शन इज कॉल्ड। ओके, यहाँ पर कोई कंजंक्शन यूज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 6, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच बिगिन विद एक्सक्यूज, पार्डन, फॉरगिव, चेंज सेट इनटू बेग्ड। ओके, अगर कोई रिपोर्टिंग स्पीच शुरू हो रही है एक्सक्यूज से, पार्डन से, फॉरगिव से, तो हमें सेट को चेंज करना है बेग्ड में। ओके, अब आपको यहाँ पर एग्जांपल्स भी दे रखी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइज, तो ये डायरेक्ट हो गया। यहाँ पर टीचर क्या कर रही है, यहाँ पर टीचर पूछ रही है, द टीचर आस्क्ड द बॉयज नॉट टू मेक द नॉइज। ओके, मतलब वो बोल रही है, एक तरीके से कमांड दे रही है, ये इनडायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट वन, ही सेड टू हर गो अवे। ओके, ही ऑर्डर्ड हर टू गो अवे। ओके, now next is exclamation। exclamation and wishes in the indirect speech are introduced by words like wonder, wish, blame और praise। अब जो exclamation या wishes होते हैं वो कौन से word से हम शुरू करते हैं, wonder से, wish से, blame से या फिर praise से। for example, Erica cried, oh how I wish I had bought my camera। okay, Erica यहाँ पर क्या कर रही है, exclaim कर रही है। Erica exclaimed that she wished she had brought her camera। ओके, तो आपने यहाँ पर देखा यूज ऑफ द प्रीपोजिशंस। ओके, तो आपने यहाँ पर देखा कि कैसे अलग अलग सेंटेंसेस में हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करें और यहाँ पर अलग अलग टाइप के हमने वर्ड्स यूज करे। ओके, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको इसकी फॉलोइंग एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है। नाउ आई एम गोना मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।